देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है, given that the events A and B are such that P of A is equals to 1/2 and P of A union B is 3/5, right? और P of B की वैल्यू इसने हमें क्या दी है? P. कहता है फाइंड P if they are mutually exclusive. अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान देनी है, क्या कि if A and B are mutually exclusive, then P of A intersection B is 0. जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो 0 होगा. एंड वी नो P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. कुछ नहीं, सिर्फ सबकी वैल्यूज डाल दीजिए. दिस इज 3/5 1/2 plus P minus 0. 3/5 minus 1/2 is equals to P. 6 minus 5/10 is equals to P. And this implies that P is equals to 1/10. Second part, if A and B are independent events, the probability of A intersection B, इस केस में क्या होगा? अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इट इज P of A into P of B. Remember this thing. Now again, जैसे हमने ऊपर लिखा, we know probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This implies that probability of A union B का वैल्यू डाल दीजिए 3/5 equals to 1/2 plus P, और minus PA intersection B is P of A into P of B, यानी 1/2P. So this becomes 3/5 is equals to 1/2 plus P minus 1/2P is 1/2P. This implies that 3/5 minus 1/2 is equals to 1/2P. ये फिर से आपके पास बच्चे बनेगा 6 minus 5/10 is equals to 1/2P. 1/10 is equals to 1/2P, and this implies that 1/10 into 2 is equals to P. This 2 and this 2 get cancelled, so we get the answer as P is equals to 1/5. So easy one it was. Just note this down and then we will move on to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है A and B are independent events. तो हमें पता लग गया अगर A and B independent events है तो क्या होता है? Probability of A is equals to 0.3, probability of B is equals to 0.4, और हमें probability of A intersection B निकालना है. तो आप देखें
Probability of A 0.3. Probability of B is 0.4. And also A and B are independent events. Therefore, probability of A intersection B is probability of A into probability of B. तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बच्चे क्या बन जाएगा 0.3 इंटू 0.4, जिसको हम लिखेंगे 0.12। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे जाते हैं ना, हम उसको सिंगल सिंगल बोलते हैं। 0.12 बोलेंगे इसको, 0.12 नहीं बोलेंगे। 0.12 बोलना गलत होता है, इसलिए हम इसको जब भी हमेशा इसको बोलना है तो अपने 0.12 बोलना है। नाउ वी नो probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो बच्चों ये बन जाएगा probability of A union B is equals to 0.3 plus 0.4 minus 0.12. This is 0.7 minus 0.12 and this becomes 0.58 as the answer. Third part is probability of A upon B. And you know that what is probability of A upon B? It is probability A intersection B upon probability of B. दोनों वैल्यूज आपको बच्चों पता है 0.12 upon 0.4. This will be 0.12. हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 12 upon 100 into 10 upon 4. जो कटता है उसको काट दीजिए, जो बचता है उसको रहने दीजिए। 0 and 0 cancel, 4 3s are 12. So my answer is going to be 3 upon 10. चलिए जी, शाबाश, इसको करिए जी नोट फटाफट से and do the fourth part for me and then we will move on to the next one. चलिए जी, the next one is P of A and B are this. तो आपके पास क्या है, हमारे पास दिया गया है P of A and B are two events such that P of A is equals to 1/4, P of B is equals to 1/2 and P of A intersection B is 1/8. Find P of not A and not B. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या देगा P of not A and not B. आपको ना सिर्फ ये समझना है कि P of not A not B क्या होता है। Not A and not B, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ not A intersection not B, ये एक्चुअल में होता है, ध्यान से समझना, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। आपने ना इस सेट्स में पढ़ा हुआ है अपनी 11th क्लास में। बाय डिमॉर्गन्स लॉ
it is equals to P of A union B dash. अब P of A union B dash निकालने के लिए मुझे P of A union B चाहिए होगा, तो we know probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A union B is equals to 1/4 plus 1/2 minus 1/8, and we get probability of A union B is equals to LCM ले ले बेटा 8, 2 plus 4 minus 1, and probability of A union B is 5/8. Therefore, probability of A union B whole dash is equals to 1 minus probability of A union B, that is equals to 1 minus 5/8, and this gives us 3/8. So 3/8 is the answer for us. ठीक है जी, तो शाबाश, करिए नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपको ना इसमें जो दिया गया है आपको वो पूछता है और आपको उसको फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है, देखिए फर्स्ट पार्ट है एंड का मतलब है कि आपसे इंटरसेक्शन पार्ट पूछ रहे हैं और ये बोल रहा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे P of A is 0.3, P of B is 0.6, and P of A हाँ, अब इसने हमसे क्या बोला, इसने हमसे बोला, देखिए इसने बोला कि सिंस A and B are, first part, independent events, then P of A intersection B is P of A into P of B, यानी P of A intersection B is 0.3 into 0.6, this is 0.18, so this is easy one. Number 2, P of A not B। अब देखिए जो इसने बोला हमने उसको ना एज इट इज लेके चलना, P of A not B। अब ये दोनों ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जब P of A not B की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बच्चे आएगा P of A इंटरसेक्शन नॉट B इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा P of A इंटू P of B नॉट, और ये बन जाएगा हमारे पास P of A। ध्यान से अब देखना क्या करने वाला हूं, ये P of B नॉट को मैं क्या लिख दूंगा, P of B नॉट को मैं लिख दूंगा यहीं पे 1 minus P of B। P of A is what, 0.3, and P of B is 1 minus 0.6। अब आपके सामने सारी बातें आ गई जी, 0.3 into 0.4 and my answer is 0.12। बस ये बात समझने वाली थी। If we could understand this thing, तो क्वेश्चन निकालना is not that difficult, it's very easy। Number 3,
Number 3 is probability of A or B. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और का मतलब यूनियन। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एंड वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, वी नो, आप सबको पता है, मुझे नहीं खाली पता, ये आप सबको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. This will be probability of A, that is 0.3 plus 0.6 minus 0.18, और पुत्र जी ये बन जाएगा 0.9 minus 0.18 equals to 0.72. So this is the answer for us, right? Fourth part, P neither A nor B. Probability of neither A naught union B naught is actually probability of, ये फिर डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर रहा है, ठीक है। ये जो पिछला वाला हमने किया था उससे उल्टा है, ये है A intersection B whole dash, which is equals to 1 minus P of A intersection B equals to 1 minus 0.18 equals to 0.82. So this is the answer for us. तो ये हमारे पास they are the 4 answers, और हम लोगों ने हर एक चीज को पहले सिंप्लीफाई किया और फिर उसकी वैल्यूज को यूज किया। शाबाश, नोट करेंगे जी सभी लोग। ये बोलता है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls. Okay, there is a box. We are having 2 balls are drawn at random with replacement from 10 black balls. इसमें से हम निकाल रहे हैं, इसमें 10 black balls हैं और 8 red balls हैं। Find the probability that both the balls are red. Okay. अब देखें 2 balls और with replacement, जब बात ये हो रहा है ना, एक वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे with replacement, ठीक। द वर्ड विद रिप्लेसमेंट हमें बताता है कि ये जो हमारे पास ये जो इवेंट्स होंगी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने बॉक्स में से एक बॉल निकाला बाहर, राइट, हमने देखा वो ब्लैक बॉल है, फिर अंदर रख दिया। नेक्स्ट टाइम की जो कंडीशन है वो सेम ही रहेंगी, टोटल 18 बॉल्स ही रहेंगे, ब्लैक बॉल्स भी 10 ही रहेंगे और रेड बॉल्स भी 8 ही रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम की जो कंडीशन है अगेन वो नई कंडीशन है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस कंडीशंस, या प्रीवियस हमने कौन सी बॉल निकली थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हियर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 balls are drawn one after the other, या one by one with replacement so the balls are so the events are independent. Events are independent.
अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगी 10/18 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आएगी 8/18. गुड. नाउ यहाँ पे if we see probability of first part, probability of both red balls या both red balls is probability of red into probability of red. ये आ जाएगा पुत्र जी 8/18 into 8/18. जो कटता है उसको काट देते हैं 4 2s 9 2s 4 2s 9 2s and then what 16/81. This is part answer of first part. Number 2, first ball is black and second is red. Okay, probability first black and second red. तो याद आएगा आपके पास probability of black into probability of red और ये आपके पास क्या बन जाएगा 10/18 into 8/18. 5 9 4/9. So you get the answer as 20/81. Simple it was. And the third one is one of them is black and the other is red. Yes. अब ये जो बात है ना इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. देखिए पिछले पार्ट में बोला था फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड. ऑलरेडी मैं बोला था लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वन ब्लैक एंड अदर रेड. अब इसमें हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट ब्लैक है या सेकंड ब्लैक है तो इसको हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड या फिर और जब भी आएगा प्लस लगेगा या पहले रेड आया बाद में ब्लैक आया. सो दिस इज 10/18 into 8/18 और 8/18 into 10/18. अब ये दोनों टर्म्स सेम है तो मैं इसको 2 times लिख सकता हूं 10/18 into 8/18. फर्दर तो पुत्र जी वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया. व्हाट वी हैव डन 10 5s 9 2s sorry 4 2s 9 2s and this becomes बच्चों what 40/81. So this is the answer for us. So how we have to take care. जब आपके पास ये दिया गया ना बच्चे one of them तो फिर हमने दोनों केसेस ध्यान से लेके चलने हैं और अगर बोलता है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड देन हम लोगों को अलग केस लेके चलना है. तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. तो इतने रखते हैं आज. नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मुलाकात करेंगे और इससे आगे करेंगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक नई आधी चीजें सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. फिर मुलाकात करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू एंड जय हिंद.